کتاب مقدس خدا تعالیٰ کی اس عظیم داستان کو بیان کرتی ہے جو ازل سے شروع ہوتی ہے بلکہ وقت کی تخلیق سے بھی پہلے۔ ابتدا میں صرف خدا تھا، اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ روشنی ہو جا، بس روشنی ہو گئی، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ پھر خدا تعالیٰ نے ایک فضا قائم کی اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس فضا کو آسمان کا نام دیا۔ یہ تخلیق کا دوسرا دن تھا۔ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کے خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا تعالیٰ نے زمین کو خشکی اور پانیوں کو سمندر کہا۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا، اور زمین نے سبزہ اگایا، ایسے پودے جو اپنی اپنی قسم کے مطابق بیج رکھتے تھے، ایسے درخت جو پھل لاتے تھے اور انہی میں ان کا بیج ہوتا تھا۔ اور چوتھے دن اس نے فرمایا، فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ چوتھے دن سورج، چاند اور ستارے پیدا ہوئے۔ پھر پانچویں دن اس نے فرمایا، پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے سمندر کی عظیم الجثہ مخلوقات کو اور پانی میں رہنے والی ہر جاندار چیز کو اس کی اپنی اپنی جنس کے مطابق پیدا کیا، اور اسی طرح ہر طرح کے پر والے پرندے بھی۔ چھٹے دن اس نے فرمایا، زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے، اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ چھٹے دن زمین کے جانور پیدا ہوئے۔ اس دن خدا تعالیٰ نے ایک اور مخلوق کو بھی زمین کی مٹی سے تشکیل کیا، پھر اس میں زندگی کا دم پھونکا، اور وہ مخلوق جیتا جاگتا جاندار بن گئی۔ خدا تعالیٰ نے اسے انسان کہا، اور اس کا نام آدم رکھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی ساری تخلیق کو دیکھا اور فرمایا، یہ بہت اچھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو ایک جنت عطا کی جو ایک باغ تھا جسے عدن کہا جاتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو کام سونپا کہ وہ اس باغ کی نگہداشت کرے۔ باغ کے عین وسط میں خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی فراہم کرنے والا درخت لگایا۔ خدا تعالیٰ نے ایک اور درخت بھی لگایا، یعنی بھلائی اور برائی کی پہچان کا درخت۔ خدا تعالیٰ نے انسان سے فرمایا کہ وہ باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، مگر اسے ایک تنبیہ کی، نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا تعالیٰ زمین کے جانوروں اور فضا کے پرندوں کو حضرت آدم کے پاس لایا تاکہ وہ ان کے نام رکھے۔ اس وقت انسان اپنے خالق کے ساتھ قریبی رفاقت میں زندگی بسر کر رہا تھا، پر خدا تعالیٰ جانتے تھے کہ آدم کا تنہا ہونا مناسب نہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو گہری نیند میں ڈال دیا اور ان کی ایک پسلی سے ایک عورت کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم نے اپنی اس رفیقہ حیات کا نام حوا رکھا۔ وہ تمام انسانیت کی ماں بننے والی تھی۔ وہ دونوں جنت کے باغ میں کامل خوشی اور اطمینان میں زندگی بسر کر رہے تھے، پر ایک اور ہستی تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ انسان اس الہی نعمت سے لطف اندوز ہو۔ وہ ابلیس تھا، وہی جو نافرمانی کے سبب راندہ درگاہ ہو چکا تھا۔ اسی نے انسان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا اور سانپ کی صورت اختیار کر کے باغ میں داخل ہوا۔ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ چنانچہ آدم و حوا دونوں نے ممنوع پھل کھا لیا، اور یوں نافرمانی کے باعث گناہ دنیا بھر میں داخل ہو گیا۔ تب ان پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ ننگے ہیں، اور خوف و ندامت نے ان کے دلوں کو گھیر لیا۔ مگر جب گناہ پہلی مرتبہ دنیا میں آیا تب بھی خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند نہ کیا۔ اس نے قربانی کا انتظام فرمایا اور جانوروں کی کھالوں سے ان کے لیے لباس بنا کر انہیں پہنایا، اور وعدہ فرمایا کہ ایک دن نجات دہندہ آئے گا جو شیطان کی طاقت کو توڑ دے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ انسان کے باغ میں دوبارہ داخل نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے خدا تعالیٰ نے باغ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا۔
इंसानों की तादाद बढ़ती चली गई, मगर इसके साथ साथ जमीन जुल्म, फसाद और खून रेजी से भरने लगी। इसलिए खुदा ताला ने इरादा फरमाया कि एक अजीम तूफान के जरिए इस बिगड़ी हुई दुनिया का खात्मा कर दे। पर एक शख्स हजरत नूह पर खुदा ताला की खास इनायत हुई। खुदा ताला ने उसे एक अजीम कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। फिर हर जानदार की हर किस्म में से जोड़ा जोड़ा हजरत नूह के पास पहुंचाया ताकि वो सब कश्ती में महफूज किए जाएं। तो कश्ती में मौजूद अफराद के सिवा तमाम इंसान और जानवर गर्क हो गए। फिर तूफान के बाद खुदा ताला ने नूह और उसके घराने से फरमाया, बारवर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। इसी खानदान से रूए जमीन की तमाम कौमें वजूद में आई, मगर वक्त के साथ इंसान ने एक बार फिर खुदा ताला की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। हालांकि खुदा ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो जमीन में फैल जाएं और इसको आबाद करें, लेकिन इंसानों ने अपनी ख्वाहिश को खुदा के हुक्म पर तरजीह दी। वो बाबिल नामी मैदान में जा बसे। वहाँ उन्होंने अपनी नामवरी के लिए एक अजीमुशान बुर्ज तामीर करने का इरादा किया। हमें हम पर हुक्मरानी के लिए किसी खुदा की जरूरत नहीं, हम यहीं एक अजीम शहर और एक बुलंद बुर्ज तामीर करेंगे। उनके सरदार का नाम नमरूद था, जो लोगों को सरकशी और बगावत पर उकसाता था। मगर खुदा ताला ने बाबिल के उस बुर्ज पर नजर की और उनकी जुबानों में इख्तिलाफ पैदा कर दिया। एक ही जुबान बोलने वाले लोग एक दूसरे से जुदा हो गए और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए। इंसानों की निजात के लिए एक और शख्स हजरत इब्राहिम को चुना गया। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा ताला ने उनसे वादा फरमाया कि उनकी नस्ल आसमानों के सितारों की मानिंद होगी और उन्हीं की नस्ल में से तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बानी बनने वाला आएगा। जब हजरत इब्राहिम 100 बरस के हुए तो उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसका वादा खुदा ताला ने फरमाया था। फिर इम्तिहान लिया। अपने बेटे को ले जाकर उसे कुर्बानी के तौर पेश करो। हजरत इब्राहिम ने कामिल इताअत की, इस यकीन के साथ कि खुदा ताला अगर चाहे तो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। तू अपना हाथ लड़के पर न चला और न उससे कुछ कर। हजरत अब्राहम ने देखा तो मेंढा झाड़ियों में खुदा ताला के हुजूर कुर्बानी के लिए था। मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग न किया। हजरत इब्राहिम और उनके बेटे ने वही कुर्बानी पेश की जो खुदा ताला ने खुद मुहैया फरमाई। सख्त कहत के बाद वो मिस्र की तरफ हिजरत कर गए। वहाँ क़याम के दौरान उनकी तादाद में मजीद इजाफा हुआ, पर मिस्र के हाकिमों ने उन पर जुल्म सितम किया। वक्त आने पर खुदा ताला ने हुक्म भेजा कि अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से निजात दें। खुदा ताला ने अपनी कुदरत के अजीमुश्शान मोजज़ात जाहिर किए ताकि वाज़ेह हो कि वही उनका निजात दहिंदा है और उन्हें सरजमीन की तरफ वापस ले जा रहा है, जिसका वादा उनसे खुदा ताला ने फरमाया। खुदा ताला ने खास शरीयत 10 अहकाम के जरिए नाजिल फरमाए ताकि इंसान सीखे कि खुदा से मोहब्बत किस तरह की जाती है और बंदों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। फिर खुदा ताला अपनी कौम को उस सरजमीन में वापस ले आया जिसका वादा उसने हजरत इब्राहिम से किया। मगर इस सब के बावजूद वो खुदा ताला की शरीयत पर कायम न रह सके। वो झूठे माबूदों की तरफ माइल हुए, बुतों की परस्तिश की और गुनाह नाफरमानी के रास्ते पर चले। अक्सर लोगों ने खुदा ताला की शरीयत की इताअत से खुलेआम इनकार किया। उनके बाज बादशाह रहनुमा ऐसे भी थे जो खुदा ताला से मोहब्बत रखते थे, उसकी राह पर चलते थे, हत्ता के देव कामत दुश्मनों को शिकस्त देते थे। पर कुछ ने झूठे माबूदों की पैरवी की और कौम को भी बुत परस्ती की तरफ माइल किया। पर चूंकि खुदा ताला उनसे मोहब्बत करता था, उसने बार बार अपने नबी भेजे। ये लोगों को बुराई से बाज रखने और उनके दिल खुदा ताला की तरफ फेरने के लिए आए थे, जिन्हें खुदा ताला ने अपना तारुफ कराने के लिए चुना। पर लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया, हालांकि वो उन्हें बार बार भेजता रहा। आखिरकार खुदा ताला ने एक सख्त गिर बादशाह और उसकी फौज को आने दिया, जिन्होंने उस शहर को तबाह कर दिया और उस हैकल को बिठा दिया जहां खुदा की इबादत की जाती थी। खुदा ताला की खास कौम को दूर दराज सरजमीन में 70 बरस के लिए कैद किया गया। ये उनके गुनाह खुदा ताला को रद्द करने और उसके अहकाम से मुंह फेरने की सजा थी। फिर वादे के मुताबिक 70 बरस बाद उन्हें वापस लाया। उस अरसे में भी खुदा ताला ने अंबिया और मुअल्लिमों को भेजा ताकि उन्हें दुरुस्त तरीका जिंदगी सिखाएं। फिर 400 बरस की खामोशी आई जब खुदा ताला ने कोई नबी ना भेजा। इन 400 बरसों में सिकंदर आजम के ज़ेर क़यादत यूनानी तहजीब ताकतवर हो गई और उसने मशरक़ वस्ता के बड़े हिस्से पर हुकूमत की। फिर रोमी हुकूमत इक़्तिदार में आई और उनकी फ़ौजों ने यूनानियों, इसराइल और बहुत से दूसरे ममालिक को फतह कर लिया। पर तारीख़ के इसी कामिल वक्त में खुदा ताला ने अपनी कामिल कुर्बानी को दुनिया में भेज दिया। यह कुर्बानी बकरियों या बैलों के खून की मानिंद न थी जो लोग अपने गुनाहों के लिए पेश करते। ये खुदा ताला की अपनी कुर्बानी होती, एक इलाही कुर्बानी जो पूरी दुनिया के गुनाहों को दूर कर दे।
खुदा ताला ने इब्तिदा ही से अपनी कौम को फरामोश न किया। पहले मर्द औरत से लेकर हर इंसान ने गुनाह किया और सब गुनाह से आलूदा हो चुके थे। इसी वजह से खुदा ताला ने दुनिया में एक बेगुनाह कुर्बानी भेजने का इरादा फरमाया। यह कुर्बानी एक ऐसा इंसान होना था जो इंसानी गुनाह की विरासत से पाक हो। खुदा ताला ने इस कामिल कुर्बानी को एक खास और मुनफरिद तरीके से दुनिया में भेजा। इसके लिए उसने एक पाकीज़ा और मुंतखब कुंवारी औरत को चुना जो किसी मर्द के साथ न थी, ताकि वो बच्चा किसी गुनहगार इंसान की नस्ल से ना हो। फिर खुदा के रूहुल कुद्स ने उस पर साया किया और वो हामिला हुई। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। इस खास बच्चे की पैदाइश का ऐलान फरिश्तों के जरिए भी किया गया। आलम बाला पर खुदा ताला की तमजीद हो और जमीन पर उनके आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। उसके बेटे का नाम यसू रखा जाना था। वो इब्ने खुदा था, एक खास और बरगजीदा हस्ती। बचपन ही से उसमें गैर मामूली हिकमत पाई जाती थी, यहाँ तक कि अपने ज़माने के मजहबी उलमा को भी तालीम देता था। फिर वक्त मुकर्ररा आया तो उसने बपतिस्मा लिया और अपने अजीम मकसद की तकमील का आगाज किया जिसके लिए वो आया था, यानी तमाम इंसानों के गुनाहों के लिए कुर्बानी बनना। शैतान एक बार फिर जाहिर हुआ, वैसे ही जैसे आदम और हव्वा के पास आया, ताकि लोगों को गुनाह की तरफ माइल करे और खुदा ताला से दूर करे। मैं तुझे ये सल्तनत है, ये शान और शौकत, अगर तुम मुझे झुककर सजदा करता है तो वो सब कुछ तेरा हो जाएगा। तो खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। जनाब मसीह ने औरतों, मर्दों, लड़कों और लड़कियों को तालीम देना शुरू की कि खुदा ताला क्या चाहते हैं। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह करते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। जनाब मसीह जमीन पर मौजूदगी में लोगों को खुदा ताला की पैरवी और एक दूसरे से मोहब्बत का दर्स देते रहे। जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सुलूक किया तो तुमने मेरे साथ किया। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि खुदा ताला कैसे हैं। उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, बीमारों को शिफा बख्शी, पानी पर चलकर दिखाया, हत्ता कि मुर्दों को भी जिंदा किया। लड़का जिंदा हो गया, ऐसा मौजा तो सिर्फ खुदा ताला ही कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों से मोहब्बत की, उन्हें बरकत दी। उन्होंने लोगों को आसमान के बारे बताया और जहन्नुम से खबरदार किया। बराह करम लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जुबान को जरा सा छू दे और लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज के वो उन्हें इस हौलनाक जगह से खबरदार करे। उन्होंने हर तरह के लोगों में से बदरूहों को भी निकाला। उन्होंने साबित किया कि वो वही हैं जो अपने बारे में कहते हैं, यानी खुदा ताला। पर मजहबी रहनुमा सख्त गुस्सा हुए। चुनाचे जनाब मसीह पर झूठा मुकदमा कायम हुआ, उन पर गलत इल्जाम लगाए गए, उन्हें कोड़े मारे गए, बेरहमी से पीटा गया और आखिरकार उन्होंने सलीब पर जान दे दी। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। शैतान, मजहबी पेशवा, रोमी हुक्मरान और खुद इंसान का गुनाह सब मिलकर जनाब मसीह की मौत का सबब बने। लोगों के ख्याल में उनका कत्ल उसके पैगाम और खुदा के मंसूबे को खत्म कर देता, मगर वो सख्त गलत फहमी में थे। पर बाग़े अदन से लेकर उस लम्हे तक खुदा का मंसूबा यही था कि इंसान को अपने साथ मेल मिलाप अता करे, और ये उस कामिल कुर्बानी के जरिए मुमकिन हुआ जो गुनाह के कफ़ारे के लिए पेश की गई। यही तो वो कामिल और बेगुनाह कुर्बानी थी, और उसने मुर्दों में से जी उठकर इस सच्चाई को साबित किया। अपनी मौत के बाद जनाब मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए और उन्हें हिदायत दी कि वो दूसरे लोगों को उनके कलाम, जिंदगी, मौत और उनके बाद अज़ मर्ग जी उठने की खबर दें। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी जमीन से रुखसती के बाद उनके पैरोकारों ने वही किया जिसका उन्हें हुक्म दिया गया, क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। मैं खुदावन ताला के नाम को पुकारना चाहती हूँ। और मैं भी है जनाब मसीह। जनाब मसीह ने फरमाया वो जमीन पर दोबारा लौटेंगे, उन सब के लिए जो उनसे मोहब्बत रखते हैं। जब वो आएंगे तो जन्नत दोबारा बहाल होगी, वहाँ लोग होंगे, जानवर होंगे और वो सब कुछ होगा जिससे हमने मोहब्बत की है। एक नया आसमान और जमीन, तमाम लोग चाहे जवान हो या बूढ़े, उसके पैरोकार हमेशा के लिए वहाँ होंगे। क्या आप भी होंगे? राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जिलावतन में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।